آج میں جنات کا غلام قسط نمبر 21 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے بہت ہی قریب بہت سی قبریں ایک دھماکے سے شک ہو گئیں اور ان میں سے گہرا دھواں نکلنے لگا۔ میں چاروں طرف دیکھنے لگا، قبروں سے نکلنے والا دھواں بلند ہوتا چلا گیا اور پھر اس نے ہماری طرف رخ کر لیا۔ دھوئیں کی شکل کسی بے ڈھنگے اور ڈھیل ڈول والے انسان جیسی تھی۔ جوں وہ دھواں پوش عفریت قریب آ رہے تھے، ان کے چہرے نمایاں ہو رہے تھے۔ جب وہ ہمارے حصار کے قریب پہنچے تو ٹہلی والی سرکار کی آواز بلند ہوئی، ریاض شاہ دیکھیں ان کے سامنے پہنچا دو، غازی بکرے بھی لے آؤ۔ شاہ صاحب اٹھے اور دائرے سے باہر قدم رکھنے ہی لگے تھے کہ ٹہلی والی سرکار کی دھاڑ سنائی دی، ریاض شاہ یہ حماقت نہ کرنا، اپنے حصار میں بیٹھ کر یہ کام کرو۔ جی سرکار، شاہ صاحب بولے، لیکن کیسے؟ ٹہلی والی سرکار نے میری طرف گہری نظروں سے دیکھا تو شاہ صاحب کی بھویں تن گئیں۔ ان کا چہرہ اب عام انسانوں جیسا ہی تھا۔ شاہ صاحب تو ٹہلی والی سرکار کی بات سمجھ گئے تھے، لیکن مجھے اس وقت سمجھ آئی جب شاہ صاحب نے مجھے مخاطب کیا، شاہد میاں اٹھو اور دیگیں ان کے سامنے رکھ دو۔ میں گھبرا کر بولا، میں ان دھواں پوش عفریتوں کو دیکھنے لگا جن کے چہرے گز گز لمبے ہو گئے تھے اور جن کی سیاہ رنگ کی زبانیں ہانپتے کتوں کی طرح باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ ان کی زبانوں سے بچھو جیسے کیڑے ٹپک ٹپک کر نیچے گر رہے تھے۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو جھرجھری لے کر رہ گیا۔ ہاں تم، یہ کہہ کر شاہ صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور کچھ پڑھنے کے بعد مجھ پر پھونک مار دی اور ایک گند سی چھڑی میرے ہاتھ میں پکڑا دی، جاؤ اور دیگیں ان کے سامنے رکھ دو۔ میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان اٹھا کہ دیگیں جب ان کے سامنے پڑی ہیں تو یہ عفریت خود آگے بڑھ کر دیگیں چاڑ کیوں نہیں لیتے؟ اسی اثناء میں ٹہلی والی سرکار کی سنسناتی آواز سنائی دی، دیر نہ کرو میرے بیٹے، جلدی سے یہ دیگیں ان کے سامنے رکھ دو۔ مگر سرکار میں دیگ کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ میں نے اپنی کمزوری کو بہانہ بناتے ہوئے کہا، تمہارے اندر اتنی قوت ہے، ایک ایک دیگ اٹھا کر ان کے سامنے رکھ دو، وقت ضائع نہ کرو۔ ٹہلی والی سرکار کا لہجہ تیز مگر گمبھیر ہو گیا تھا۔ میں نے دوبارہ دھواں پوش عفریتوں کی طرف دیکھا تو وہ اب کی بار اپنے بازو اوپر اٹھا کر چیخنے لگے تھے۔ ان کے بدن سے بھی بچھو نما کیڑے گرنے لگے تھے۔ میں نے ان کے پیروں کی طرف دیکھا جہاں ان کیڑوں کا ایک ہجوم ہوتا جا رہا تھا۔ اگر تم نے دیر کر دی تو یہ زہریلے کیڑے ہمیں کھا جائیں گے، شاہ صاحب نے میرے بہت قریب آ کر کہا۔ یہ مانس کھورے ہیں، انہیں انسانوں کا گوشت بہت پسند ہے، یہ ہڈیاں بھی چبا ڈالتے ہیں، اب جلدی سے اٹھو۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور پھر جوں ہی میں نے حصار سے باہر پاؤں رکھے، مانس کھورے میری طرف بھاگے اور میں ان سے بچنے کے لیے دیگوں کے پاس جا پہنچا۔ دیگیں چند قدم پر اونچی قبر کے پاس رکھی تھی، وہاں ایک بڑا سا کپڑے کا ڈھیر بھی پڑا تھا جس میں ہلچل سی ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی شے موجود ہے۔ میں نے ایک دیگ کو پکڑا اور اسے اٹھانے لگا تو وہ میرے حساب سے خاصی وزنی ثابت ہوئی۔ میں نے اس کو اوپر سے پکڑا اور دیگ کو پہیے کی طرح گھما کر دھوئیں پوش عفریتوں کے پاس لے گیا۔ ایک آدھ ماس کھورا دیگ کے نیچے بھی آ گیا اور اس کی کربناک چیخ بھی سنائی دی۔ میں نے جلدی سے دیگ چھوڑ دی اور بھاگ کر دوسری دیگ بھی ڈھکیلتا ہوا لے آیا۔ دیکھا تو سارے ماس کھورے پہلی دیگ پر چڑھ گئے تھے اور جب تک میں دوسری دیگ لے کر پہنچا وہ سارے دیگ چڑھ کر چکے تھے۔ وہ دیگ پر جس دنگا مشتی کے ساتھ جلگار کرتے تھے اس سے عجیب سا شور بلند ہو رہا تھا۔ میں نے جب تک 10 دیگیں ان تک پہنچا دی اس وقت تک غازی بھی بکروں کو لے کر آ گیا تھا۔ سارے بکرے سیاہ رنگ کے تھے، وہ خوف سے منمنا رہے تھے۔ ایک طرف ماسکور کیڑوں کا شور اور دوسری طرف بکروں کی منمناہٹ سے قبرستان میں ایک طلسم کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ میں جب آخری دیگ دھکیل کر واپس حصار میں جانے لگا، کسی نے پیچھے سے میری قمیض کا کونا کھینچ لیا اور میری قمیض پھٹ گئی۔ اسی لمحے ایک زوردار تھپڑ کی آواز گونجی اور ساتھ ہی کوئی خوفزدہ بچے کی طرح چلایا تھا۔ میں جلدی سے حصار میں بیٹھ گیا، میری سانس پھول گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کسی پہاڑ کو سر کر کے میں آیا ہوں۔ میں نے اس طرف دیکھا جدھر میری قمیض کھینچی گئی تھی، وہاں اب غازی کھڑا تھا، پاس ہی کپڑوں کی وہ ڈھیری پڑی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری قمیض کس نے کھینچی تھی۔ شاہ صاحب نے یہ میرا مسئلہ حل کر دیا اور بولے، اس حرام خور نے تمہیں پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کپڑوں کی ڈھیری کی طرف اشارہ کیا۔ غازی اور بابا جی سرکار نے کالی داس کے بہت سے چیلوں کو پکڑ کر بوری میں بند کیا ہے، اس میں سے ایک نے تمہیں پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ غازی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اسی دوران غازی نے سارے بکرے دھواں پوش عفریتوں کے سامنے کھڑے کر دیے تو وہ نادیدوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے۔ بکرے منمناتے ہی رہ گئے۔ عفریتوں نے درندوں کی طرح بکروں کو چیر پاڑ کر کھا لیا
और इनकी खींचातानी में बहुत से बकरों के लोथड़े दूर दूर तक जा गिरे थे। मांसखोरे इन लोथड़ों की तरफ भाग गए। इसी लम्हा गाजी की हसरतनाक आवाज बुलंद हुई। वो आह लेकर बोला, हमसे तो ये भूत अच्छे हैं। मुंह बंद करके बैठ गाजी, बाबा जी सरकार की आवाज सुनाई दी। जी बाबा जी, ये कहकर गाजी मेरे हिसार में आ बैठा और मुंह मेरे कान के करीब लाकर बोला, एक आध बकरा मुझे दे देते तो मैं इनके सारे काम कर देता। गाजी गाजी, बाबा जी की आवाज अब बहुत करीब से आई थी। मैंने उस जानिब देखा तो वो टाली वाली सरकार के अकब में खड़े थे। गाजी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। इस कदर खौफ व हरास के बावजूद मैं मुस्कुरा दिया और इस एक लम्हे की मुस्कुराहट ने मुझे बेहद तकवीयत दी। गाजी दोबारा सरगोशी करने से बाज नहीं आया। भैया, अब तो तबीयत ठीक हो गई है ना? मैं तो आपको नॉर्मल करने के लिए बोल रहा था। गाजी का नुस्खा वाकई मेरे लिए जान फजा साबित हुआ था। धुआंपोश अफरीत बकरे और देगें चट कर चुके थे और दोबारा अपने मांसखोर कीड़ों समेत कब्रों में चले गए थे। कब्रिस्तान पर अब खामोशी तारी हो रही थी। कुर्ब जवार में सिर्फ झींगरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं या फिर गाजी की भारी भरकम सांसों का ज़ेरो बम महसूस हो रहा था। जिन्नात की खासियत है कि जब ये इंसानी वजूद में मुस्तकिल होते हैं तो इनकी सांस भारी और गर्म हो जाती है। अगर आपने किसी हाई ब्लड प्रेशर मरीज की बिगड़ती हुई हालत को करीब से देखा है तो ये जान लीजिए कि जिन्नात का ये रूप इससे 100 गुना ज्यादा बिगड़ा हुआ नजर आता है। अगर वो करीब ना भी बैठे हों तो इनकी भारी और गर्म सांसों की हिद्दत जो महसूस होती है जैसे कोई इंसान तंदूर के करीब बैठा हुआ उसकी तपिश को महसूस करता है। गाजी जब भी मेरे करीब आता था मुझे पसीना आ जाता था। यार गाजी, मुझे गर्मी लग रही है। मैंने इसे जरा परे हटाते हुए कहा, अगर मेरे पास बैठे रहे तो मैं जल जाऊंगा। वो मेरी बात समझ गया और बोला, तो फिर आप शाह साहब की हालत का अंदाजा लगा लें। बेचारे एक नहीं सैकड़ों जिन्नात की कुर्बत बर्दाश्त करते हैं। अब तो वो भी कुंदन बन गए हैं, उस तंदूर की तरह जो रोटियां सींगता है वो खुद भी जल रहा होता है लेकिन अपना रूप कभी नहीं खोता। गाजी एक अजीब माहिर नफ्सियात साबित हुआ था। उसने मुझे ये एक बात समझाने के लिए बहुत ही पुरलुत्फ तरीका इख्तियार किया था और मैं वाकई इस बात को समझ गया कि अमलियात की पुरअसरार दुनिया में रहने वाले इतने जलाली क्यों होते हैं। दरअसल इनका अंदर भी तप चुका होता है। आग से खेल खेल कर उनके पूरे बदन का लहू आतिश नवा हो चुका होता है। ऐसे लोगों का नफ्स इसी आग से भड़कता रहता है। रूहानियत आग नहीं होती, एक नूर की ठंडी किरणों जैसी कुव्वत होती है। इसमें जलाल होता है लेकिन ये जलाल कहर की सूरत में मुस्तकिल नहीं होता। नफ्स उस ठंडी आग के हाथों बेमौत मर जाता है। जब गाजी मुझे ये समझा रहा था तो इसी लम्हे ताली वाली सरकार की मसरत अमेज आवाज सुनाई दी, लो भाई, हम कामयाब हो गए। आप कूरे पर बुलंद धुआं अब समेटना शुरू हो गया था और उसके अंदर एक कोताह कामत इंसान मेंढक की तरह फुदकता हुआ नजर आ रहा था। वो धुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था मगर उसकी तमाम कोशिशें बेसूद थीं। तू अब भाग नहीं सकेगा कालिदास। ताली वाली सरकार ने छुरी की नोक धुएं में घुसेड़ी तो कालिदास ने फुदकना बंद कर दिया। उसकी बारीक लसती हुई आवाज सुनाई दी, सरकार, मैं वचन देता हूँ आज के बाद मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दें। सरकार, इसको माफ नहीं करना, बाबा जी की गुस्से में भरी हुई आवाज सुनाई दी। सुनो जरकान शाह, मुझे मरवा कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम भी मुझे क्षमा कर दो तो मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। मेरी बात याद रखना जरकान शाह, इबलीस की नस्ल से हूँ और तुम भी उसी में से हो। तुमने जो बहरूप भरा है ये खुलकर रहेगा। उस लम्हे मैंने रियाज शाह के चेहरे पर खौफजदगी के साए महसूस किए और वो तेजी से बोले, सरकार, इसको जल्दी जहन्नम वासिल कर दें, ये बकवास कर रहा है। रियाज शाह, खामोश बैठो। मैं समझता हूँ तुम्हें किस बात का खौफ है। तुम भी एक आमिल हो, अपने अंदर सब्र करना सीखो। उसने अगर तुम्हारे बाबा जी को उनके असली नाम से पुकार लिया है तो तुम्हें क्या परेशानी है? ज्यादा परेशान होने से अब कुछ नहीं होगा। रियाज शाह खामोश तो हो गए मगर उनकी हिजानी कैफियत खत्म ना हुई। उन्होंने कन अखियों से मेरी तरफ भी देखा था मगर मैं यूं सुमन बुकमन हो गया था जैसे मुझे गर्दो पेश की खबर ही नहीं थी कि क्या हो रहा है। कालिदास के अल्फाज मेरे ज़हन में घूम रहे थे और बाबा जी का तकद्दुस से भरा नौरानी चेहरा मेरी नजरों के सामने आकर ठहर गया। कालिदास, मैं दुश्मनों और बुरे लोगों को मारने के आदाब भी जानता हूँ लेकिन अफसोस मैं गंदगी को पाकीज़गी की जगह पर नहीं रख सकता। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। ये कहकर टाली वाली सरकार ने छुरी कालिदास में घुसेड़ दी तो आनन फानन कब्रिस्तान के ऊपर बिजलियां सी कड़कने लगी। दरख्त तूफानी अंदाज में हिलने लगे और हर सू बैन करती आवाजें सुनाई दी। ओ बाबा,
तुमने क्या कर दिया? हमारे प्रभु को मार दिया, हमको भी मार दे। बैन करती आवाजें कभी दरख्तों से आ रही थीं और कभी कब्रों से। अब मैं खामोश तमाशाई की तरह बैठा था। मुझे इस सूरत हाल की खासी समझ आ चुकी थी और मुझे तहफ़्फ़ुज़ का भी एहसास था कि ये ताकतें मेरी हिफाजत करेंगी। ये शोर खासी देर तक बरपा रहा। कालिदास अब धुएं में तहलील हो गया था और जूं जूं धुआं सुकड़ता हुआ आप खोरे में वापस जा रहा था। बैन करती बदरूहों की आवाजें भी कम होती जा रही थीं। कुछ लम्हों बाद धुआं आप खोरे में बैठ गया और वहाँ चुटकी भर खाक नजर आ रही थी। टाली वाली सरकार ने वो राख पोटली में बांध ली तो उसके साथ ही कब्रिस्तान में सुकून लौट आया। सबके चेहरे मसरूर थे। शाह साहब ने कालिदास की राख लेने के लिए टाली वाली सरकार के आगे हाथ बढ़ा दिया तो बाबा जी यानी जरकान शाह की आवाज सुनाई दी, रियाज शाह, नादीदे ना बनो। जो कुछ तुम्हारे पास है अगर इसे ही संभाल कर रख लो तो बहुत बड़ी बात है। ये ठीक कहता है, टाली वाली सरकार ने कहा। रियाज शाह, तुम पर कुछ कुव्वतें मेहरबान हैं तो इसकी लाज रखो। हम समझते हैं कि तुम्हारे बातन में क्या है। हम उन कुव्वतों की लाज रखे बैठे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं कहते। हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस राख से तुम क्या कुछ कर सकते हो, लेकिन हमारा मशवरा है कि सिर्फ उस पर इक्तफा करो जो तुम्हें दे दिया गया है। अगर ज्यादा चाहिए तो फिर रियाजत करो और चिल्ले काटो, मगर अफसोस कि तुम अब उसकी हिम्मत नहीं रखते। रियाज शाह के चेहरे पर शर्मिंदगी से पसीना आ गया। वो रात मेरे लिए जितनी खौफनाक और दहशत ज़्यादा थी, अब इतनी ही मेरे लिए इसमें दिलचस्पियां पैदा हो गई थीं। कब्रिस्तान पर छाए हुए इसरार के बादल बरस चुके थे और अब रूहानियत के इसरार हर सू छा रहे थे। भेद की बातें खुल रही थीं। शाह साहब पर हिजालत और निदामत का सौदा सवार था। वो टाले वाली सरकार के कदमों में गिर गए और इनके पांव पकड़कर कहने लगे, सरकार, आपके होते हुए मुझे इतनी रियाजतों और चिल्लों की क्या जरूरत है? मैं तो आपका बालका हूँ। आप नजरे इनायत कर देंगे तो मैं कुछ बन जाऊंगा। रियाज शाह, टाली वाली सरकार की आवाज गूंजी, तुम जानते हो सारी उम्र जिन्नात के साथ नहीं गुजर सकती। इनकी ताकत से कब तक अपनी चौधराहट कायम रखोगे? लिहाजा तुम अपने अंदर बातनी रोशनियां पैदा करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। सरकार, मैं तो अनाड़ी हूँ, ये रोशनियां कैसे पैदा कर सकता हूँ? आप ही मेरे अंदर चिरागा करेंगे तो बात बनेगी। ये सुनकर टाली वाली सरकार ने फलक शिगाफ कहका लगाया और बोले, बदबख्त, तुम मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी माँ के पास बुजुर्गों का फैज था, तुमने उसमें से रत्ती भर चुरा लिया और अब खुशामद करते हुए मुझसे भी रोशनी लेना चाहते हो। टाली वाली सरकार खामोश हुए तो बाबा जी बोले, मोहतरम, इसे रोशनी से ज्यादा आग से प्यार हो चुका है। मैं इसे बहुत समझा चुका हूँ, लेकिन ये समझता ही नहीं है। अब देखिए, कालिदास की राख मांग रहा है। आप समझते हैं कि ये राख क्यों मांग रहा है? मैं जानता हूँ जरकान शाह, सब जानता हूँ। ये बंदा अपनी औकात से बाहर हो रहा है। अगर हमें इसके बुजुर्गों का लिहाज ना होता तो हम इसे इबरतनाक सबक सिखाते। सरकार, ऐसी बातें ना करें, मेरा दिल घबराता है। शाह साहब हिनोज उनकी कदमों में झुके हुए थे। सीधा होकर बैठ जा रियाज शाह, कान खोलकर मेरी बात सुन ले। तू काले इल्म की कश्ती में सवार होना छोड़ दे और नेक अलूम सीखना शुरू कर दे। तो सरकार, सिखा देना, मैं भी तो काला इल्म नहीं करना चाहता। शाह साहब की असलियत जानकर मुझे धचका लगा। एक ऐसा शख्स जिसे रूहानी पीर जैसा इज्जत और एहतराम दिया जा रहा था, उसका ये भयानक रूप मेरे सामने आ गया। इसी वजह से तो मुझे उनका चेहरा इंसानों जैसा नहीं लगा था। तुम्हारे अंदर असबीत का जहर भरा हुआ है रियाज शाह, अपना करूत खत्म कर दे। कोई भी रूहानी आमिल करूत के साथ जिंदा नहीं रह सकता। टाली वाली सरकार शाह साहब को काफी देर तक सजनिश भी करते रहे और फिर इन्हें हिदायत भी देते रहे। मैं खामोश नजरों से उन्हें देखता रहा।